Good morning. Today I'm going to show you this website, very easy to use, full of advertisements. Money Control. Okay. That's the homepage of Money Control. Yesterday, if I'm not mistaken, I told you the web address of that, www.moneycontrol.com. Okay. Now, if you want to search for any share, if you want to know anything and everything about a specific company's share, then how do you search the information? Here, you can see a search bar. Is it visible? Yes, this is a search bar. So, like if you remember, we had talked about Larsen and Toubro yesterday. So, if you were to search about that, I'll just type Larsen. Okay, ये मैंने इतना ही टाइप करने के बाद they have given 2-3 options. So now I select Larsen and Toubro. Range का अभी थोड़ा सा let's see. Okay, चलो. So this is the main screen for Larsen and Toubro now. So let's understand what all information can we find on the screen. बाप रे, आज का सेशन में थोड़ा मजा आने वाला है because it's based even on technological glitches. If the net speed is slow, then okay, better. Yes. So can you see this Larsen and Toubro? Is it visible or not? Or shall I zoom in? Better now? So here you can see BSE. This is the data for BSE. And for NSE, this is the data. 1246.85. Chalo dekhte logically who can give me the answer. Who can tell me what do you mean by 1244.65 on BSE? And who can tell me what is 1246.85 on NSE? इसका meaning क्या है? The stock has closed yesterday at this price on BSE and at this price on NSE. इसी को हम बोलते हैं closing price. So today we are going to come up with newer terms right away. So if you see here, today's high low करके एक है, ये तो चलो ठीक है, हाँ चलो. You can see this data. Previous close. Okay, what do you mean by previous close? उसके पहले वाले दिन, what was the price at which the share closed? But today, मतलब ये day before yesterday करेगा. अभी ये कल का है, 1244.65. Yesterday, this is the price at which the share closed. Who can tell me what do you mean by share closed on this price? Share close हुआ इस price पे मतलब? At the time of 3:30. Okay, at the time of 3:30, the value of this share L&T on BSE was 1244.65. ठीक है, agreed. There is one more term which we come up across here, that is known as LTP. Latest traded price. Very commonly used. So if you want, you can write it right away. LTP, latest traded price. LTP is the latest traded price. क्या होगा बोलो latest traded price? That is the price, the word itself says na? That is the price at which the share traded ekdam at the end. Latest traded price. Okay, but can I say this LTP can keep on changing during the market hours? During the market hours क्या LTP change हो सकता है क्या? हाँ. So let us say at 9:30 latest traded price was whatever is at 9:30. At 9:31 LTP will be different. At 9:32 LTP will be different. Okay. Why 9:31 and 9:32? 9:31 1 second. 9:31 bachke 2 seconds. Can I say every time LTP is going to change? Yes. Okay. But this LTP which we can see on the screen is what LTP as on 3:30, which was the closing LTP. Is this okay? चलो अभी आंसर कौन देता है देखते हैं. 1246.85 यहाँ पे आ रहा है. What is the meaning of this? This is LTP on NSE. Why is this different? Can you see this? BSE के ऊपर इसका प्राइस अलग है, NSE के ऊपर इसका प्राइस अलग है. ऐसे कैसे हो गया? Same share, L&T only. Fantastic. Demand and supply, that is the only answer, like we discussed yesterday. The demand and supply for NSE, the demand and supply for L&T on NSE was different than demand and supply on BSE. I'll give you a very simple answer for this.
if you were to buy some vegetables from a market nearby, which is Mandai, the price of 1 kilo of potatoes in this vegetable market might be different from the price of 1 kg of potatoes in some other market. Why? Potato तो वही है यार, quality भी वही है. Why is the price different? Could be demand and supply. Are you getting my point? Yes. Wherever there is more population but less number of sellers, more population in a specific area, less number of sellers, what will happen? Price will rise. If it's a very posh locality, very high fundu locality, prices will always rise. Correct? So similar situation is there. BS is, yesterday only I told you, na, BSC kya hai? Dukaan hai. So BS is one market, NSE is one market. Demand and supply on both are different. And that is the only reason why the stock prices on both could be different. Am I saying it will be different each and every time? No, it could be different for sure. So is this basic point clear? Why prices could be different on two different markets? Okay. So let us move on now. क्या लिखा है यहाँ पे देखो, प्रीवियस क्लोज, मतलब ये उसके भी पहले दिन का प्रीवियस क्लोज है. नाउ हियर यू कैन सी द ओपन प्राइस. व्हाट इज ओपन प्राइस? 1245.95. अब आज अगर आपके पास टाइम है तो व्हाट वी कैन डू इज एट 9 o'clock, ideally when our batch stops at 9 o'clock, there is a pre-opening market session. Okay, आज ही रहता है या रोज रहता है? रोज रहता है. Okay, so yesterday if you remember we have discussed about the market hours. Do you remember what were the market hours? 9:15 to 3:30. We are coming across a very important concept right now. So एकदम 100% attention चाहिए. So we have discussed this yesterday that the market timings are 9:15 to 3:30. Okay. But what used to happen earlier, understand? At 9:15 exactly, मतलब market चालू हो गया. Immediately there used to be so many people like you and me, so many big investors, they used to rush in to place orders. Okay, कि किसी को लगता है यार आज मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, किसी को लगता है आज मार्केट बहुत नीचे जाएगा. So everyone would actually rush to place their orders. So now tell me what would happen? Everyone pay attention. At 9:15, would there be only 1 or 2 orders placed or multiple orders placed at 9:15? Multiple orders, because 3:30 से लेके, मतलब previous day 3:30 से लेके आज का 9:15 तक they were not able to place any order as such directly. वो भी कर सकते, बाद में आएगा वो. बट 3:30 के बाद मतलब कितना टाइम चला गया यार, कुछ भी करने को नहीं मिला मार्केट में. देयर आर पीपल हु आर क्रेजी अबाउट स्टॉक मार्केट. दे फील रेस्टलेस. अरे बाप रे 3:30 बज गया, अभी डायरेक्टली कल 9:15 बजे. इतना रेस्टलेसनेस होता है ऐसे लोगों में. सो व्हाट वुड हैपन? टेल मी. 9:15, 1, 2 orders or multiple orders? Multiple orders. Would this lead to a big price variation in the market? क्या होगा बोलो? अचानक से बहुत डिमांड आ गया, प्राइस इंक्रीज हो गया. अचानक से बहुत लोगों ने बेचना चालू कर दिया, प्राइस गिर गया. वापस से अचानक बहुत लोगों ने बेचा और प्राइस गिर गया. मेनी पीपल नाउ पुट अ डिमांड, प्राइस बढ़ गया. इट वाज सीन दैट फ्रॉम 9:15 to 9:30, पहले सिर्फ 15 मिनट में देयर यूज्ड टू बी अ ह्यूज फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक मार्केट, इवन अप टू 3%. 3% फ्लक्चुएशन इज अ बिग वन बाय द वे. 3% ऑफ फ्लक्चुएशन समझते हैं आप कितना होगा? जैसे अभी सेंसेक्स इट्स एट अराउंड 35,000, बट फॉर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन सेंसेक्स इज अज्यूम एट 30,000. इसका 3% मतलब कितना होगा? 900 पॉइंट्स. इट्स अ बिग वन. यानी कितने टाइम में फ्लक्चुएट होता था? 15 मिनट में. वाई? पीपल इज टू क्रेजीली बाय, क्रेजीली सेल. कैन आई से इससे कई बार छोटे इन्वेस्टर्स का नुकसान होता होगा. छोटे इन्वेस्टर का नुकसान कैसे हो गया? बेचारे ने मान के चलो यहां पे बाय किया एंड अचानक से विद इन 15 मिनट्स मार्केट हैज क्रैश्ड. सो टू अवॉइड द लॉसेस टू दिस स्मॉल इन्वेस्टर्स, what was done that a new market segment was introduced. Word क्या उसके मैंने न्यू मार्केट सेगमेंट was introduced. And what is this segment? Segment starts at 9 in the morning and closes at 9:15. तो ये सेशन कितने का होता है? 9 to 9:15. इसी सेशन को हम बोलते हैं प्री ओपनिंग मार्केट सेशन. Okay, what do we call this? Pre-opening market session. The word itself says, what does the word say? It's a pre-opening. अब logically बोलो, इसका logic मतलब क्या रहेगा ये pre-market opening? Would you be able to place orders? Would you be able to place orders?
कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? वुड यू बी एबल टू प्लेस अ बाय ऑर्डर? यस. वुड यू बी एबल टू सेल अ प्लेस ऑर्डर? यस. ध्यान से सुनो. बाय तो मतलब यू आर एबल टू प्लेस एन ऑर्डर, यू आर एबल टू सेल एन ऑर्डर. अब ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं इज द क्वेश्चन. एग्जीक्यूट होगा क्या? सो ये क्या करते हैं, ये सिर्फ एक प्राइस मूवमेंट देखते हैं, कितना बाय हो रहा है कितना सेल हो रहा है. एंड इसमें भी 9 to 9:15 में भी उन्होंने क्या किया है, इफ यू वांट टू नो अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल, जाओ थोड़ा सा इन डिटेल. 9 to 9:15 में क्या होता है देखो. फर्स्ट फ्यू मिनट्स 9 to 9:07, पहले 7 मिनट सिर्फ ऑर्डर्स प्लेस होते हैं. अब इसमें पागल जैसे ऑर्डर प्लेस होंगे, लाखों करोड़ों ऑर्डर्स पहले 7 मिनट में प्लेस होंगे. उसके बाद फॉर अनदर 2-3 मिनट्स, आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 9:08 to 9:11, आगे के 3-4 मिनट में ऑर्डर मैचिंग होता है. इसका ऑर्डर मैचिंग होता है. मैचिंग होता है मतलब समझते हो आप, इतने लोगों ने बाय किया है तो इतने सेलर्स है क्या, इतने लोगों ने सेल किया है इतने बायर्स है क्या. समवन विल हैव टू मैच द ऑर्डर ना. यस. ये कौन करता है? मैं करती हूँ. कौन करेगा? स्टॉक मार्केट सिस्टम, द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ द स्टॉक मार्केट. दे विल कीप ऑन मैचिंग द ऑर्डर्स. ऐसे कितने एग्जीक्यूट होते हैं देखना पड़ेगा उनको. एंड वंस दिस इज डन इन द लास्ट 4 मिनट्स में इट इज एक्चुअली सीन कि ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है. बट यहाँ पे मेनली लास्ट 4 मिनट्स में मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं होता है. मूवमेंट प्राइमरीली कहां पे होगा बोलो? स्टार्टिंग 7 मिनट्स में मूवमेंट होता है. इससे फायदा टू स्मॉल इन्वेस्टर्स क्या होगा? आई वॉन्ट अ करेक्ट आंसर. एडवांटेज टू स्मॉल इन्वेस्टर्स ओनली आफ्टर इट लुकिंग फ्रॉम 9 to 9:07. क्या फायदा होगा? विल दे बी एबल टू गेस द ट्रेंड ऑफ द मार्केट व्हेन द मार्केट एक्चुअली ओपन्स. अगर 9 to 9:07 में पहले ये 3-4 मिनट में ऐसे हो गया था एंड बाद में स्टेबली इट इज इंक्रीजिंग, तो आइडियली एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? आइडियली एक्सपेक्ट क्या करेंगे? मार्केट आज नीचे ओपन होगा या ऊपर ओपन होगा? आइडियली ऊपर ओपन होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. सो वन लास्ट टाइम क्विकली पे अटेंशन. किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट विच सेशन? प्री ओपनिंग मार्केट सेशन. ओके, व्हाट हैपेंस इन प्री मार्केट ओपनिंग सेशन? हम व्हाट इज द टाइम? 9 to 9:15. 9 to 9:15. Why pre-opening market session? Can I say it is to absorb the volatility which used to arise if trading used to directly start at 9:15. ये volatility को absorb कर लेता है कि शुरुआत के कौन से कितने मिनट में? 9 to 9:07. इसमें मेनली ऑर्डर्स प्लेस होंगे, बाय सेल व्हाटएवर. जितने लोगों को ऑर्डर डालना है डालो. ओके. मैचिंग कब तक होता है? 9:08 to 9:11 एंड लास्ट 4 मिनट्स जस्ट फॉर स्टेबलाइजेशन. सो टेल मी क्विकली, 9:15 को जब मार्केट स्टार्ट होगा तो ऐसे पागल जैसे आड़ा टेढ़ा अप 2%, डाउन 3% ऐसे होगा, या स्टेबली इट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज? स्टेबली इट विल इंक्रीज और डिक्रीज. इज दिस अ वेरी वेरी गुड सिनारियो फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी? यस. अदरवाइज क्या होगा? ओपनिंग में ऑर्डर डाल दिया, नुकसान हो गया. दैट शुड नॉट हैपन. Is this okay? Pre-opening market session? Yes. So if you just want to write down quickly, pre-opening market session. It is a 15-minute session. It is a 15 minutes session. From what to what, tell me? From 9 to 9:15. कौन से पर्पज से होता है? टू व्हाट? एब्जॉर्ब. टू एब्जॉर्ब व्हाट? क्या एब्जॉर्ब करता है ये? हेवी फ्लक्चुएशंस. टू एब्जॉर्ब हेवी फ्लक्चुएशंस. इन द मार्केट. यहां तक ओके? पक्का? Now let us understand. 9 to 9:15 का तो सीन क्लियर है, दैट इज प्री ओपनिंग. 9:15 to 3:30 क्या बोलेंगे अपन? 9:15 to 3:30 व्हाट इज दिस नोन एज? मार्केट आवर्स. अब और भी एक छोटा सा सेगमेंट होता है 3:30 to 4. इसके बारे में आज नहीं बात करना अपने को. वेरी शॉर्ट सेगमेंट. This is mainly not for people like you and me. It is mainly for brokers.
सो ये अपने को पीपल लाइक यू एंड मी, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इनको ये ओपन होता ही नहीं है. सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. ओके, बट वी आर गोइंग टू डेफिनेटली टॉक अबाउट 4 to what? 4 PM to what? लास्ट स्लॉट क्या रहेगा अभी? कल सुबह तक. 4 PM इन द इवनिंग टू 9 AM. दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट मॉर्निंग. अच्छा, दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज आफ्टर मार्केट आवर्स. और इसमें जो ऑर्डर प्लेस होते हैं इसको बोलेंगे आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स. वेट, न्यू कंसेप्ट है ये, बहुत लोगों को पता नहीं रहेगा. Oh, is that so? मतलब can we place an order in the market even after 4 PM? Can we place a buy order after 4 PM? Can we place a sell order after 4 PM? Answer is yes. Such an order will be known as after market order. Okay. ये किन के लिए डिजाइन क्या होगा? Any idea? कौन पागल होगा जो 4 PM के बाद ऑर्डर प्लेस करेगा, रात को 7 बजे ऑर्डर प्लेस करेगा, रात को 8 बजे ऑर्डर प्लेस करेगा? Any guess? Can people like you and me also place orders? Assume that in my office many of the websites are blocked. They don't allow mobile usage. And I'm a long-term investor, so I'm not really bothered about a short-term price movement. मैं बोलती हूँ मैं शेयर आज बाय करूंगी, 2 साल के बाद 3 साल के बाद बेचूंगी. So does it really bother me if I buy it at 1002 rupees or 1003 rupees or 1005 rupees? That does not bother me. Okay, so when can I place my order? After I come back home, after I have my dinner. रात को सोने के पहले WhatsApp चेक करने के बाद. Everyone checks WhatsApp before going to bed religiously, ना? Everyone, yes. सबका लास्ट सीन देखने में मजा आता है. 2 AM, 1:30. Okay, so ये WhatsApp वगैरह हो जाने के बाद जब फ्री टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, तब अपन क्या आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं. रात को 2 बजे कैन वी प्लेस एन ऑर्डर इन द मार्केट? Yes. When will it be executed? Next morning 9:15. बात आ रही है समझ में? Yes. So this is a funda where even if you are in office, even if you are not allowed to use mobiles or internet during the office hours, you can definitely place orders after your office hours also. So next concept ले लो. AMO, after market orders. Orders which are placed between. Orders which are placed between. Between what and what? Tell me. What timing to what timing? 4 PM till 9 AM in the next morning. इसमें very important point. Can order be placed during this time? Yes, but when will it get executed? 9:15 in the next morning. So just एक last one liner add करेंगे. We may place AMOs. We may place AMOs. We may place after market orders, but they will get executed. But they will get executed when? They will get executed कब बोलो? At 9:15. So when the market opens basically. Is this okay? Yes. Chalo, quick input I want from your side. How many of you are from commerce background? Commerce background? Almost everyone. Almost. Up last. कॉमर्स बैकग्राउंड. हाथ ऊपर करने के लिए बोर हो गया. हाँ ठीक है. राइट. सो इन कॉमर्स वी लर्न अ वेरी वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू करंट ईयर्स ओपनिंग बैलेंस. तो बहुत एकदम मतलब 11th स्टैंडर्ड फंडा है ये. 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस. व्हाट हैपेंस इन शेयर मार्केट? जैसे टेल मी व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ L&T on BSE? This is closing. This is like closing balance. 1244.65. Correct? Tell me, आज जब market open होगा at 9:15, tell me what should be the ideal price of L&T? 1244.65? Everyone agrees? Answer is wrong. Ooh, answer is wrong. Closing price is not equal to opening price. Very rarely will be the answer. Super rarely. Either price 1244.65 के ऊपर ओपन होएगा या फिर नीचे. 99.999%. That 0.001% is a chance that it opens at the same price. My question to you is that
assume today L&T opens at 1250. Just a guess, okay? Opens at 1250. Who can tell me why did this happen? आज ओपन होते ही 1250 पे ओपन हो गया, ऐसे कैसे? Now are you getting the logic? There could be a lot of aftermarket orders wherein the demand is built up very strongly, but supply is not built up that strongly. So opening itself, price will rise and vice versa. Are you getting my point? Yes. So that is why the important concept of AMOs, aftermarket orders, iske karan, many a time it happens that whenever market opens, at opening only 9:15 ka first price, it will happen that share opens either in green or in red. Okay. So what do we mean by, आज अगर ये 1250 पे open होता है, तो generally you will see that it is shown something like this. 1250 पे open हो गया, then you will see a green triangle. And roughly it has increased by how much? 4 point कितना? 12 क्या था वो? Let's say 1245. Round off कर देंगे 1245. तो it is up by how much rupees? 5 rupees. There is a terminology for this again. The terminology is, it is known as a gap up opening. क्या बोलते हैं इसको? Gap up opening. Very commonly used terminology, okay? एक 2 मिनट रुको, बाद में पूरा समझाऊंगी. Assume that L&T opens today at, obviously second अपना क्या होगा? 1240. 1240 पे अगर ओपन जाता है, तो टेल मी ये कलर कौन सा आएगा फिर अभी? रेड एंड समथिंग लाइक दिस डाउन. अगेन दिस इज वेरी कॉमनली यूज्ड. ओके, एंड ब्रैकेट में क्या? अगेन ब्रैकेट में क्या आएगा? 5 रुपए से नीचे गिर गया ना. That bracket figure tells you by how much rupees it has either gone down or has gone up. Is this okay? इसी को क्या बोलेंगे? Gap. Everyone, gap down opening. यहाँ तक okay क्या? Gap up opening and gap down opening. When I was doing my CA final, I started investing in stock market in 2006. Okay, and that was the first time I came across this. अच्छा, gap up opening, gap down opening, right? And I was watching CNBC and I found that instead of this 5, 2, 3, something was written as unch. And I was worried, yaar, ye unch kya rehta hai, kya pata? I asked one of my seniors, do you know what is this unch? He said, unch? There's nothing like unch in the stock market. And I said, I saw it today on CNBC. He said, I don't know. I asked other senior, ye unch kya rehta hai? He said, unch? Even I don't know. I felt so impressed about myself कि I am asking such a भारी doubt. 2 of my seniors are not able to answer. Finally, I asked my boss, sir, ये ऊंच क्या होता है? He said, where did you see it? I then finally opened up CNBC. Office में TV था. And there I saw this ऊंच again. Okay, and he said, अरे पागल, that ऊंच is not ऊंच. That's a short form for unchanged. Okay, so if the price opens at 1245, what will be written? Unch. Okay, and that is unchanged. This is a very, very, very rare scenario that it will open at the same price. Is this okay, everyone? Don't forget uncha. So let us write down quickly all these terminologies. Gap up, gap down, and unchanged. So first one is gap up opening. Gap up opening. If the share price opens at, if the share price opens at a price, opens at a price, क्या लिखेंगे आगे? Higher than या lower than? Higher than what? Previous day's closing price. Higher than previous day's closing price. Comma. It is known as what? Gap up opening. Next terminology. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी कौन सा है बोलो? गैप डाउन ओपनिंग.
gap down opening. Can you write this on your own? फटाफट लिख लो. डन. ऊंच लिखने की जरूरत नहीं, याद रखो सिर्फ. सो लेट अस मूव ऑन टू द वेबसाइट अगेन. अब फटाफट आंसर चाहिए एकदम. 1244.65 इट्स द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस फॉर BSE. 1246 इज फॉर NSE. ठीक है. अब अगर आपने यहां पे देखा तो देखो व्हाट इज द लास्ट ट्रेडेड प्राइस. आपको टाइम दिख रहा है क्या? लास्ट ट्रेडेड प्राइस का टाइम कितना है? कैन यू सी दैट? 16.00. 16.00 बजे ये लास्ट प्राइस है. मतलब कितने बजे? 4 PM. सो डू यू रिमेंबर आवर चार्ट? मैंने आपको बोला था 3:30 to 4 वो एक ब्रोकर्स वाला होता है वेयर वी कांट पार्टिसिपेट. सो दैट इज जनरली द लास्ट ट्रेडेड प्राइस. सो मेनी पीपल डोंट नो दिस. उनको लगता है 3:30 बजे जो मार्केट क्लोजिंग प्राइस होता है दैट रिमेन्स सेम टिल द मार्केट ओपन्स ऑन द नेक्स्ट डे. दैट डज नॉट हैपन. Always have a look at 3:30 price and then check the 4 o'clock price. You will see there is a minor change in the price. That is because of that broker's market. Is this okay? Yes. चलो. So previous close क्या है? Open price क्या है? So आज अपन pre-opening market will try to see here for first 2-3 minutes at least. You'll get a feel of how pre-opening market session works. Okay, and how the price movement occurs in the first few minutes. Okay. The concept of bid price quantity and offer price quantity comes next. Bid price, offer price. क्या रहेगा ये? Bid means buy. Bid price की quantity है ये. Quantity मतलब 26 quantity मतलब who can tell me what is 26 bid quantity? 26 people are wanting to buy the shares. Or is it 26 shares which are being bought? क्वेश्चन समझ में आया? 26 पीपल वांट टू बाय द शेयर्स और 26 शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस हुआ है. या फिर टोटल नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स आर 26. आई शपथ, टू मच. ओके, शैल आई टेल द आंसर? नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स इज 26. Number of sell orders is 40. Does it mean only 40 shares? Could it be 40 shares, by the way? Could it be 40 shares? How? Everyone is placing an order for one share. But could it be in multiples of 40 also? Yes, why not? Because if people are selling more and more number of shares, it could be in multiples of 40 also. So is this okay? Bid price means the best buying price. Offer price is the best सेलिंग प्राइस. उसके बाद आता है वॉल्यूम 99,224. बाप रे, कौन सा वॉल्यूम है ये? शेयर का वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ शेयर्स. व्हाट नंबर ऑफ शेयर्स? यू आर करेक्ट. ट्राई टू आंसर. वेरी गुड. नंबर ऑफ शेयर्स दैट वर ट्रेडेड ड्यूरिंग द डे. इन सिंपल वर्ड्स वी मे से नंबर ऑफ शेयर्स विच चेंज्ड हैंड्स. एक बंदे से दूसरे बंदे के पास गए. सो अज्यूम आई सोल्ड 100 shares, she bought 100 shares. What will be the volume? 100. Don't say 100 plus 100. Then it will be a wrong answer. So 100 means 100 कब बोला जाएगा? When number of shares traded. That is a volume. Now there's a I sign here which you can see. It's visible? So if I just take my arrow here, what it shows is that average volume. एवरेज वॉल्यूम मतलब क्या? देखो, ऑन एन एवरेज लास्ट 5 days में इसका वॉल्यूम कितना था? LNT का 1,94,000 था. 10 days वॉल्यूम वॉज 1,79,000. 30 days वॉल्यूम वॉज 1,83,531. एंड राइट नाउ वॉल्यूम वॉज, yesterdays वॉल्यूम वॉज 99,224. कैन आई से इट्स वे बिलो द एवरेज ऑफ लास्ट 5, 10 और 30 days. ओके,
इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है वो थोड़ा सा और आगे आएगा, बट प्राइमा फेसी इट इज नॉट गुड. आई होप यू अग्री विद दिस. प्राइमा फेसी, इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं, बट प्राइमा फेसी नंबर ऑफ पीपल who are trading in L&T, has it dropped or has it increased above average? It has dropped. Could there be multiple reasons why it has dropped? Yes. अभी सिर्फ अपन इतना बोल रहे कि it has dropped. Okay. So whenever you are checking the volume, always check, is this volume very high or very low, or is it in line with the averages? Okay. See why I am referring to money control. It's a ready-made website. Students love ready-made things these days. Teacher is giving notes, teacher is giving summary notes, teacher is providing MCQs. सिर्फ अभी ऐसे बचा है कि मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई करती हूँ, तुम बस जाके उधर. हाँ, सो दिस इज अ परफेक्ट वेबसाइट. ऐसे बोला है, सिर्फ तुम अपना दिमाग चालू रखो, बस एवरी डेटा यू विल फाइंड हियर. अदरवाइज कौन ही एवरेज निकालते बैठेगा? इट विल बी सो टायरसम टास्क. हियर यू कैन सी इट रेडीमेड. ओके, सो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट इज क्लियर. If I go on to the next one, here you can see high and low concept. See here. Today is low, today is high. This is a very simple concept to understand. The word itself says, who can tell me what is 1238? That was the lowest price of L&T, and 1264 highest price. During the day or during 2-3 days? During the day. It's only today's low or high. Then you can see 52-week low or high. 52-week low or high. पिछले एक साल में what was the lowest price and what was the highest price? So if you see here, पिछले एक साल में lowest price was roughly around 1200, highest price 1259. So can I say the stock has moved in the range of barely 10% in 1 year? बराबर ना. अगर आपने लोएस्ट पे भी लिया है, लोएस्ट कितना है? रफली अराउंड 1200 ना. 1200 का 10% कितना हुआ है? आई शुड से 20%, रफली 20%. Roughly 20% is the difference between the last year's entire year's low and entire year's high. Is this okay? 52-week low high. This is given for each and every script again. Each and every share this data will be given. अब ये LU price band क्या है उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अपने को. This is a little bit high tech फंडा. अपन इसी क्लास में कवर करने वाले in this 10 days only, but may not be today. Okay? इतना आज समझ में आ गया क्या अभी तक? इस पूरे स्क्रीन में क्या देखा हमने? आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा हमने? चालू करते, could the price be different on BSE and NSE? Yes. Why? Demand and supply. Number 3, yesterday's closing price and current opening price could be different. Main reason could be AMOs. Gap up opening, gap down opening and unch. Okay. One more concept I guess we discussed. और एक concept क्या था ना, उसके अलावा एक concept और क्या है? प्री मार्केट ओपनिंग. प्री मार्केट ओपनिंग 9 to 9:15 वाला अभी तक इतना किया है. ओके, नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट कि नाउ आई हैव टू चेक, आई एम शोइंग द होमवर्क इन फ्रंट ऑफ यू नाउ, दैट इफ यू वांट टू चेक दैट लार्सन एंड टूब्रो ने आज तक कभी बोनस दिया है क्या? इफ यू वांट टू चेक दैट, इज इट वेरी सिंपल? यस. सो आई एम ऑन द होम पेज ऑफ L&T नाउ. हाउ डिड आई गो हियर? सर्च बार ऊपर था, मैंने उसमें लार्सन टाइप किया, मैं यहाँ पे आ गई हूँ. दैट्स इट. Now I am just scrolling down, okay, and here left hand side part is very important. Here you can see something known as corporate action. Very, very, very important tab. In this you can see a lot of data about any company. Corporate action. So I am clicking on this corporate action. Now if we go to corporate action, here again you can see, देखो ये अपना मेन टैब है कॉर्पोरेट एक्शन का. इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें आ गई. लेट्स सी इफ वी नो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स. दोज हु कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड यू शुड नो फर्स्ट टू, दो वी हैव नॉट डिस्कस दिस इन द क्लास. बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दोज हु डोंट कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड ऑल्सो, डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनका जो मीटिंग होता है दैट इज अ BOD मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग. AGM और EGM,
एनुअल जनरल मीटिंग और ईजीएम इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग. ये किसके साथ होती है? विद द शेयर होल्डर्स. ओके, इनके डेट्स बताए जाएंगे. डू यू नो व्हाट इज डिविडेंड? हाँ, पढ़ा है हमने. डिविडेंड कितने अमाउंट तक टैक्स फ्री है? 10 lakhs. ओवर एंड अबव दैट टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. वेरी गुड. उसके बाद हमने पढ़ा बोनस. कल ही पढ़ा ना बोनस. 1:1 मतलब क्या? 1 share free for every 1 share held. राइट्स अभी तक हमने नहीं किया है. बट हैव वी डन स्प्लिट्स? यस. व्हाट इज स्प्लिट? 10 rupees फेस वैल्यू का इट गेट स्प्लिट इनटू लेट अस से 5 rupees और लेट अस से 2 rupees. ओके, सो नाउ इफ यू वर टू नो कि L&T ने बोनस कितने बार दिया है एंड कब कब बोनस दिया है. सो आई अगेन जस्ट क्लिक्ड ऑन बोनस टैब. Here you go, so many times. My God, right from 1965, मतलब वो अपना दादाजी का कबर्ड, तब से लेके लेटेस्ट बोनस विच वॉज गिवन बाय L&T is 2017. Previous to previous year. Who can tell me what is this meaning of 1:2 bonus? For every you will get 2 bonus. ये मुझे कल भी ऐसे लगा था that yesterday when I was giving example of bonus, किसी ने ऐसे बताया था, but I thought मैंने उल्टा सुना है क्या, इसीलिए I thought let me take this example so that if there is any misconception, confusion, that should get clarified. I'll tell you, whenever we solve problems during the CA curriculum 11th standard 12th standard, तब कई जगह पे उल्टा दिया जाता है. सो आप जो बता रहे हो ना, ये शायद आप बुकिश हिसाब से बता रहे हो. दिस इज नॉट करेक्ट. इसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन इज यू गेट 1 share फॉर एवरी 2 shares हेल्ड. सो 1 share यू गेट बोनस फॉर एवरी 2 shares हेल्ड. ये एग्जैक्ट उल्टा लिखते हैं कई बार क्लासरूम्स में. उल्टा लिखते हैं ना बहुत बार. So that is not the correct meaning. Who can tell me the meaning of 8:25? You get 8 free shares for every 25 shares that you already hold. बात आ रही है समझ में? One last one. 1:10 का क्या होगा मीनिंग? For उल्टा उल्टा मत बोलना. 1:10 you get 1 share, 1 free share for every 10 shares held. पक्का क्लियर है क्या? ये इस बोनस में गड़बड़ नहीं करना है. सो इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, इसमें गड़बड़ हो सकता है. कल का बोनस का ही इसमें अगर थोड़ी सी जगह है, यू कैन गिव वन मोर एग्जाम्पल. टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ 1:2. एग्जाम्पल कुड बी 1:2. इसका इंटरप्रिटेशन बता रही हूं. 1:2. 1 free share, 1 free share for 1 free share for every 2 shares held. 1 free share for every 2 shares held. Is this okay? Yes? Acha. So if you have understood this, now let us come to this. अच्छा, और तुमने कौन सा बताया था आज आते बोनस के लिए? दिस जुबिलेंट फूड वर्क्स यूर टॉक्ड अबाउट ना. विल जस्ट क्विकली चेक दैट एज वेल. अब कैसे जाना है आपको सबको पता है. ऊपर ये सर्च बार है. आई जस्ट टाइप जुबिलियंट फूड वर्क्स. देखो आ गया. गया. आजा भाई. So now you have to tell me quickly, how do I see whether company has really given bonus or not? First I have typed Jubilant Foodworks. Okay, you are on this page. Here also see, as usual you can see there is a difference between BSE and NSE price. Okay, where do I go now? Corporate action. So I go to corporate action.
ओके, इनसाइड दैट व्हाट डू आई डू नाउ? और कहां पे जाओ अभी? इन बोनस. कैन यू सी दिस? इसका बोनस का समरी बहुत ही छोटा है. ओनली वन बोनस गिवन टिल डेट. ओके, क्या लिखा है देखो. बोनस डेट क्या है? अनाउंसमेंट डेट इज 8/5/2018. बोनस रेशियो, अरे ये तो सिंपल वाला बोनस रेशियो, बट इसको बोलेंगे कैसे? बोलो. 1 free share for every 1 share held. Okay, now we are going to come across very 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 important terms, super important terms. 3 डेट्स आती है यहां पे. अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स बोनस डेट. पहली बार सुन रहे? अनाउंसमेंट डेट, रिकॉर्ड डेट, एक्स बोनस डेट. We should be very well clear with this. If you want to enjoy free shares, bonus shares, can you easily do that? Yes. So please understand this very important point. ऐसे होता है क्या कि द कंपनी डिक्लेयर्स दैट वी आर गोइंग टू गिव बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1 ओनली इफ यू आर होल्डिंग शेयर्स टुडे. ऐसे डायरेक्ट अनाउंसमेंट होता है क्या? तो नहीं. ऑलवेज बोनस अनाउंसमेंट विल बी मेड मच मच इन एडवांस. एडवांस में किया जाता है. कैसे? देखो, अनाउंसमेंट डेट कब है? 8th May. एंड रिकॉर्ड डेट कब है? 23rd June. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये रिकॉर्ड डेट क्या चीज है. वेरी इंपॉर्टेंट डेट. इस डेट पे इफ यू होल्ड शेयर्स ऑन दिस डेट, इफ यू होल्ड शेयर्स, किधर होल्ड करते? डीमैट अकाउंट. If you are holding the shares on 23rd June, then you are entitled to get a bonus. Is this okay? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. What does this mean? 8 May announcement was done कि we are going to declare bonus. Did I have shares of Jubilant Foodworks on that date? No. I get to know about this announcement. I said, I want bonus. Can I buy on immediate same day also? Can I buy on this? Assume they make this announcement early morning 10 o'clock. The moment they make this announcement, I buy shares. I want a correct answer. Am I entitled to bonus? Even if I buy shares after announcement? Yes. Till what date I can buy? 20? So now till what I can buy is important. 23rd पे मेरे पास मेरे डीमैट में शेयर्स होने चाहिए. कल ही हमने एक चीज बोला है. एंड व्हाट वाज दैट? T+2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट कुड हैपन अगर ये T+2 का फंडा नहीं होता था तो. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. Okay, so what would happen? Record date and X bonus date. Assume what happens is that on record date I buy shares. Let's take an example. On record date I buy shares. चलो, I want a correct answer. कल ही मैंने आपको बताया था that 1:1 bonus देने के बाद what will happen to the share price? Increase, decrease, what? Decrease. By what ratio? Half हो जाएगा, double हो जाएगा, what? Proportionate हो जाएगा ना. But 1:1 is bonus means what? It will be half. So what was the current market price? 1297. So let us say at that time, even I don't know exactly उस टाइम पे क्या था उसका शेयर प्राइस पिछले साल. Assume it was 1200 rupees. Post bonus, what will be the new price? 600 rupees. Okay till here? Yes. Now please pay attention. ना, अगर ये रिकॉर्ड डेट को ही अगर ये 1200 का 600 हो जाता है,
रिकॉर्ड डेट को अगर ये 1200 का 600 हो गया, देन व्हाट पीपल कुड डू, बाय एट 600 एंड से ये नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू बोनस ऑफ 1:1. Will this be logically wrong? Yes. Is that person getting a double benefit in that case? एक तो आधे प्राइस में मिल रहा है प्लस 1:1 फ्री शेयर मिलेगा. That will not happen. आप अगर लेना चाहते हो शेयर तो you will have to buy it at a higher price. Higher price कब तक रहेगा? Before record date या before X bonus date? Before X bonus date higher price रहेगा. Okay, so what is the last date on which 1200 रुपए ट्रेड किया होगा? 21st या 20th? 21st को बेसिकली हो रहा है एक्स बोनस. अब ये ऐसे क्यों हो गया? सो बेसिकली मैंने 20th को बाय करना चाहिए. देर इज अ पॉसिबिलिटी, विल चेक द कैलेंडर, मे बी यहां पे बीच में कोई हॉलीडे आ गया होगा. कल देखा ना हमने T+2 कौन से डेज होते हैं? वर्किंग डेज. सो इफ देर इज अ सैटरडे संडे इन बिटवीन, ये पॉसिबल हो गया होगा. या फिर देर इज सम पब्लिक हॉलीडे ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ऐसे केस में क्या होगा बोलो? आपको एक्स बोनस के पहले लेना है या एक्स बोनस के डेट पे लेना है? एक्स बोनस के पहले लेना है. सो क्विकली टेल मी, if the share price is 1200 rupees on 20th of June, what will be the date on 21st of June? What will be the price on 21st of June? 600. क्योंकि उसी दिन ये हो जाता है X बोनस. कल मैंने आपको बोला था कि ये कम बोनस, X बोनस. What is X बोनस? Excluding बोनस. गया इसमें से बोनस. So 1200 का कितने में ड्रॉप हो गया? 600. It has dropped already to 600. Now will you be entitled to bonus? No, now will not be entitled to bonus. Just out of curiosity, let's check कि ये बीच में कोई सैटरडे संडे आया है क्या? You have your mobile calendars ना? मैं भी चेक करती हूँ, बट साइमल्टेनियसली आपका अगर फास्ट हो रहा है तो. क्या ये जून 2018 जून 23rd is the record date and ये 21st ये था ना. अपेरेंटली यहाँ पे कोई हॉलीडे 23rd इनफैक्ट इज अ सैटरडे. सो अपेरेंटली तो कोई हॉलीडे नहीं है, बट मे बी देयर कुड बी सम पब्लिक हॉलीडे और समथिंग लाइक दैट, यू नेवर नो. ओके, सो मेन चीज आपको यहाँ पे क्या देखनी है? देखो रिकॉर्ड डेट तो आपको टेक्निकली समझ में आ गया. क्विकली टेल मी व्हाट इज रिकॉर्ड डेट. शुड यू बाय शेयर्स ऑन दैट डेट टू गेट बोनस? ऑन दैट डेट यू शुड हैव शेयर्स इन योर डीमैट अकाउंट. कैन यू बाय शेयर्स ऑन एक्स बोनस डेट and get bonus? No. क्या होगा बोलो? You should buy the shares one day before the X bonus date so that you are entitled to bonus. This is absolutely very clear. Announcement कब हुआ है? In the month of May. 1 month prior to that. There are so many people who don't know this funda only. I have taken the privilege of enjoying so many bonuses only because I have followed the announcement date. अनाउंस होने के तुरंत बाद शेयर्स ले लो, एंजॉय द बोनस. व्हाई नॉट? इज दैट इजीली डूएबल? लोग क्यों नहीं करते ये? स्मॉल इन्वेस्टर्स, आधे लोगों को ये पता ही नहीं होता है. मे बी बिफोर द बैच यू ऑल्सो आर नॉट अवेयर अबाउट दिस ना. कि अनाउंस पहले ही होता है. अनाउंस होने के रफली देखो यहाँ पे मोर देन 1 month बीच में टाइम है. कैन यू इजीली बाय बिटवीन दैट डेट? यस. सो 3 dates वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से 3 days है? announcement date, X bonus date and record date. First one, announcement date. What is announcement date? Tell me. Date on which the company announces. Date on which company announces. क्या अनाउंस कर रहा है? बोनस. और could it also be this split also? Any announcement ना? अपना एग्जाम्पल चल रहा है, बोनस और स्प्लिट, whatever is the case. Second one is what? Record date. क्या होती है बोलो record date? Date on which you must have shares in your demat account. Date on which you must have shares in your demat account.
enjoy bonus shares. अगेन सिर्फ बोनस या बोनस स्प्लिट राइट सबके लिए यही है, सबके लिए यही है. राइट नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ बोनस. एंड व्हाट इज द थर्ड डेट? एक्स bonus. Again this will be as X bonus or X split or X right, whatever, same. X bonus date. Who can tell me what is this date? Date on which share starts trading at a revised price. Correct? It is the date on which share starts trading at a revised price. Yes, done till here. वैसे देखा जाएगा तो अभी तक कल जितना हमने बोला था उसी के ऊपर से पूरा डिस्कशन चालू हो गया है. वी स्टार्टेड विथ होमवर्क यस्टरडेज ना, बोनस, उसके ऊपर ये पूरा डिस्कशन था. बट आई फील दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स. ऑल आर एब्सोल्युटली क्लियर. Yes, let us quickly revise now. Actually मतलब अभी पूरा रिविजन स्टार्ट होगा तो एक काम करेंगे आज डायरेक्टली टुवर्ड्स द एंड रिविजन करेंगे फिर with all these new concepts also. Today only I guess we have covered more than 5-6 concepts. आज कितने हो गए concepts अपने? 7. Very good. चलो एंड अभी अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा आज का. बट मनी कंट्रोल में बेसिक चीजें कैसे चेक करनी है अभी तक समझ में आ गया है? Yes, we are going to go into more and more advanced features as and how the batch progresses. All right. So today's first discussion which I was going to take up, जो अभी मैंने ऑलरेडी लिया है, what was that? Corporate actions. अब आपने ही बताना है कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं. बोनस, स्टॉक स्प्लिट, राइट्स, AGM, EGM, बोर्ड मीटिंग. ओके, नाउ यू नो व्हाट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन. ओके देखो ये सभी अभी आपको हाँ ये पता है ऐसे हो गया. राइट. रिकॉर्ड डेट, डू वी नो दिस? यस. सो लेट अस मूव ऑन. एक्स बेसिस, कम बेसिस, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. यस. प्राइस एडजस्टमेंट, प्राइस एडजस्ट होता है. ऑन विच डेट डज द प्राइस एडजस्ट? ऑन द एक्स बोनस. वही है ना अपना, प्राइस एडजस्ट होता है. So in our example, original price was 1200. Bonus declared in the ratio of 1:1. Price, adjusted price will be 600. Is this okay? Yes. So that was about the price adjustment. Price adjustment का example लिखने की जरूरत नहीं है ना. Can we go on directly? Okay. Yes or no? Yes. Okay. चलो. So ये अपने को ऑलरेडी पता है सेकेंडरी मार्केट में. इफ यू रिमेंबर येस्टरडे हैड गिवन अ वेरी सिमिलर पॉइंट. क्या होता है देखो, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर सिक्योरिटीज ट्रेड होता है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर अमाउंट जाता है. इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टर हियर इफ यू हैव अ कंपनी हियर दैट विल बी सेकेंडरी मार्केट, दैट विल बी अ प्राइमरी मार्केट. ओके. सो मार्केट जो होता है अपना सेकेंडरी मार्केट जो होता है, इसमें व्हाट आर द हु आर द डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स. वन वी हैव अ स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली विदाउट हुम वी कांट ट्रेड ओनली. Second, we have investors. Investors कौन? People like you and me. We all are investors. Okay. So let's do one thing. Let's go one by one. सबसे पहले आता है आपका stock exchange. Okay. So stock exchange in simple words होता क्या है देखो. Stock exchange provides a platform for investors to buy or sell securities from each other. Please understand such an important job stock exchange is doing. जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या बताया था, इट्स अ शॉप. अदरवाइज हाउ वुड इट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू बाय शेयर्स ऑफ एनी कंपनी फ्रॉम एनी पर्सन whom I don't even know? जैसे कल मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाया था. विच टू शेयर्स आई हैड बॉट? L&T एंड M&M. M&M क्या था? महिंद्रा एंड महिंद्रा. कैन यू टेल मी फ्रॉम whom I bought the shares? From whom did I buy shares? नाम पता होगा. This is kept secret. We don't know from whom we have bought shares. If I sell the shares to someone else, I don't know to whom I have sold. I have sold to someone in India. Okay, ये identity एकदम
अनवील रहती है. ओनली स्टॉक मार्केट नोज कि आई हैव सोल्ड द शेयर्स टू हुम. मुझे क्या करना है, मैंने किसे बाय किया, पैसे आए, काम खत्म. ओके, यस. सो दिस बेसिकली प्रोवाइड्स व्हाट, प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज. दो स्टॉक एक्सचेंजेस तो हमने ऑलरेडी बोले हैं, कौन से, BSE and NSE. And today I'll also talk about one more stock exchange, that is MSEI. Earlier it was known as MCX-SX. I'm sure MCX नाम सुना होगा आपने. MCX full form, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. अब भी स्टॉक मार्केट धीरे धीरे झेप रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट कमोडिटी एक्सचेंज. व्हाट हैपेंस इन कमोडिटी एक्सचेंज? You buy or sell gold, you buy or sell silver, you buy or sell even food grains. So it could be crops, agriculture products, metals, anything. ये पूरा जाता है commodity market में. Anything other than shares. We are not going to discuss that right now. But MCX ने अपना एक खुद का stock exchange का एक arm float किया है. That is MCX-SX, Multi Commodity Exchanges Stock Exchange. Okay. But frankly speaking, आज भी ये इतना famous नहीं है जितना BSE and NSE. Okay. Moving ahead, अलग अलग members of stock exchange कौन होते हैं? Do we know already who is the member of stock exchange? Yes, broker. हमने 2-4 examples भी लिए आज तक. कौन से examples लिए थे? 2-3 examples. मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइस, शेर खान, ICICI Securities, HDFC Securities. We have taken examples. So brokers को ही क्या बोलते हैं? Brokers को बोलते हैं members of stock exchange. Okay. Why is this very important? Why am I talking about broker? Investors can trade in the secondary market only through members of stock exchange. Means what? Can I directly go and buy from NSE? Can I buy shares directly from BSE? No. Stock exchange does not recognize me. Stock exchange recognizes its member, broker. So it has to be compulsorily via a broker. कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ता मुझे ब्रोकर के पास? ट्रेडिंग अकाउंट, आई ऑल्सो नीड अ डीमैट अकाउंट, आई ऑल्सो नीड सेविंग अकाउंट. ऐसे कोई तो एक कंसेप्ट पढ़ा था, तीनों 3-in-1 अकाउंट सम बैंक्स प्रोवाइड. यस्टरडे वी हैड डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट, राइट? सो ब्रोकर्स के थ्रू रूट होना ट्रांजैक्शन इज अ मस्ट. मैंने स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम हम तो डायरेक्टली वेबसाइट से ही बाय सेल करते हैं, ब्रोकर की क्या जरूरत है? रुको, वेबसाइट किसका है? ब्रोकर का है. कैन यू गो ऑन BSEindia.com and directly buy? Can you go on NSEindia.com and buy? Can you go on Money Control and buy? No. These are not websites for buying and selling shares. हाँ, आप वहाँ पे गेम खेल सकते हो मनी कंट्रोल पे. गेम क्या होता है आपको पता है? मनी कंट्रोल also is a virtual game. Okay. So they will allot you some 1 crore rupees and you can buy or sell. बहुत मजा आता है शुरुआत में. You will, the moment you gain even 10 rupees, you'll say, I knew this share is going to rise. If someone asks why, नहीं, अंदर से लग रहा था. So you'll not be able to justify, but that मजा ही अलग होता है. 10 rupees even if you get. That's a virtual game. Try it out. Moneybhai.com करके है वो. MONEY, moneybhai.com. That's a virtual platform, gaming platform from Money Control. Okay. So one more time, last time. Can I directly buy from BSE NSE? Yes or no? No. I have to route my transaction through members of the stock exchange. इसी को बोलते हैं आप brokers. Okay. अब investors. Who are the investors? There could be a various category of investors. RII, HNI, DII, FII, FPI. बाप रे बाप. कौन है ये? RII, Retail Individual Investors. Retail Individual Investors मतलब कौन रहेगा? People like you and me. ओके, why are we learning these terminologies? ये सभी टर्मिनोलॉजीज जनरली आपको आईपीओ के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आते हैं. बिकॉज आईपीओ के टाइम पे न्यूज में हमेशा ये फ्लैश होता है, RII सेगमेंट अप्लाइड फॉर सो मेनी शेयर्स. आप बोलते हो कौन RII सेगमेंट? RII कौन है? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. एडअप करना है टर्मिनोलॉजी. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. RII, Retail Individual Investors. The word is self-explanatory ना ideally. Retail मतलब people like you and me, and it's an
इंडिविजुअल इन्वेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. HNI कौन होते हैं? बड़े लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. ओके. वेन एवर वी अप्लाई फॉर एन IPO, इन दोनों में डिस्टिंक्शन किया जाता है बिटवीन RII कैटेगरी एंड HNI कैटेगरी. ओके. अभी डिस्टिंक्शन कैसे होता है बताती हूं आपको. एनी इन्वेस्टर अप्लाइज फॉर शेयर्स लेस देन 2 लाख रुपीज, लेस देन 2 लाख रुपीज, तो आप RII की कैटेगरी में जाते हो. इफ यू अप्लाई फॉर 2 lakh और मोर देन 2, सो इट्स एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू. If you apply for more than 2 lakh rupees, then you go into the HNI category, high net worth individual category. So let's take an example. मान के चलो yesterday's example again. Patanjali comes up with an IPO, and per share they have kept the price at 2000 rupees. Okay? ये 2000 कहाँ से आया, क्या आया? When we discuss primary markets, I'm going to talk about that. So assume that they fix the price at 2000 rupees, and I want to apply for, let us say, 120 shares. I want to buy 120 shares. तो ये कितना होगा बोलो? 1 2 3 4 12 2 24. कितना हो गया ये? 2,40,000. I will be treated as RII or HNI? HNI, because my primary investment exceeds 2 lakh rupees. But HNI का I क्या है? Again, it's a high net worth individual. We are still talking about people like you and me only. One in the rich category, one in the normal category. Is this okay? HNI का फुल फॉर्म लिख लिया आपने. HNI क्या है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. उसके लिए वन स्मॉल क्लैरिफिकेशन. HNI कौन होता है? हु इन्वेस्ट इन IPOs फॉर ग्रेटर देन 2 lakh rupees. Who invest in IPO for an amount. Who invest in an IPO for an amount greater than 2 lakh rupees. यहां तक ओके. नेक्स्ट वन इज DII. हु इज अ DII? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब थोड़ा अलग आ गया. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. एंड लास्ट वन इज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. FII इज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, also known as foreign portfolio investor. Okay, so let us quickly understand. इनमें से कौन सा इंडिविजुअल, मतलब कौन सा कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर? यू हैव टू टेल मी. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंक, लेट्स से ICICI बैंक. ओके, बैंक इज which of the investor among these categories? DII. If I'm talking about ICICI Bank, it will be a DII. Insurance companies, again DII. Why insurance? Insurance का DII के साथ क्या संबंध है? Do insurance companies also invest in stock market? Yes. In fact, LIC, Life Insurance Corporation of India, is one of the biggest investor of stock market. LIC क्यों पैसा, मतलब कहां से पैसा लाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए? We all pay the policy premiums. They have a huge amount from policy premiums. क्या करेंगे इस प्रीमियम का? They'll invest in stock market. Then which category of investors they are treated as? DII, domestic investors, who are the institutional investors. What about mutual funds? Again DIIs. आ रही है ना बात समझ में? DII very clear. And last one, लास्ट एक एग्जाम्पल लिया है, ये FPI, जो बेसिकली पैसा जो इन्वेस्ट होगा ये मेनली will come from foreign funding. यूरोज, पाउंड्स, डॉलर्स, ऐसे पैसा अंदर आएगा, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू रुपीज एंड देन दे विल इन्वेस्ट इन आवर स्टॉक मार्केट. इज दिस ओके? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. यस. इश्यूअर्स कौन होते हैं आपको पता है? हमारे एग्जांपल में हु इज द इश्यूअर? पतंजलि. पतंजलि इज द इश्यूअर कंपनी. वी नो दिस. ओके, अब ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, डू वी ऑलरेडी नो दिस? व्हाट इज T+2? ट्रेड डेट प्लस 2 days. इफ आई एम द बायर, 2 दिन के बाद क्या होगा?
I'll get the shares in my demat account. If I'm the seller, क्या होगा? After 2 days, I'll get money in my account. Is this okay? So T+2, we are already aware about that. अब एक ही सिर्फ बात, थोड़ा सा अगर टेक्निकलिटीज में अगर जाना चाहते हो तो थोड़ा सा जाएंगे, लिटिल बिट. सो क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. आपने शायद बैंक्स के बारे में सुना होगा. बैंक में लेट अस से दिस इज बैंक ICICI बैंक. ओके, I have an account with ICICI Bank and I have given a check to him. Check is of ICICI Bank. बराबर ना, मेरा बैंक अकाउंट किसके पास है? ICICI बैंक के पास. मैंने एक चेक लिख दिया ICICI बैंक का. But the receiver's account is in HDFC Bank. Okay, how does money get transferred to his account? Clearing house. ओके, सो एक होता है प्रॉपर क्लियरिंग हाउस जिसमें आईसीआईसीआई बैंक से जितने भी चेक्स आए वो सभी से क्लियरिंग हाउस में जाते हैं. क्लियरिंग हाउस में प्रॉपर ढेर सारे एम्प्लॉइज होते हैं हु विल चेक किया कौन कौन से बैंक के चेक आए, किस किस बैंक में जाना है ये चेक. सो दे विल देन डिसबर्स दीज चेक्स टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स जहां जहां पे ये भेजना है. दैट हैपन्स इन अ बैंक. लॉजिकली टेल मी, सेम सिस्टम शुड हैपन इन स्टॉक मार्केट. येस और नो? येस. इंस्टेड ऑफ payer payee, here I'll say here we have a buyer and here we have a seller. अब seller से shares buyer के पास आने के लिए डायरेक्टली उड़ के आएंगे क्या? There has to be a clearing house in between. Is this logically same like a bank? Yes. So एक clearing house हर एक का अपना अपना अलग होता है क्या? तो yes. You have NSCCL, National Securities Clearing Corporation Limited. क्विकली टेल मी, लिमिटेड मतलब ये भी एक कंपनी ही है. दैट्स ऑल्सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इज इट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? नो. अगर आपको याद है मैंने क्या बोला, पतंजलि इवन टुडे इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट इट इज नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. दैट इज पॉसिबल. ओके, सो NSCCL, दैट इज व्हाट? क्लियरिंग हाउस फॉर व्हाट? National Stock Exchange. Similarly, you will have a different clearing house for Bombay Stock Exchange and you will have a separate clearing house for MCSX, which is newly known as MSCI. यहाँ तक भी ओके? सो हर एक का अपना अपना क्लियरिंग हाउस है थ्रू विच द शेयर्स विल मूव फ्रॉम whom to whom? From the seller to the buyer. क्लियरिंग हाउस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस. अब आते हैं डिपॉजिटरीज एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. क्या आपने ये सुना है कभी? NSDL CDSL. NSDL CDSL. NSDL फुल फॉर्म इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. क्या करते हैं NSDL CDSL? डिपॉजिटरीज. एनी आइडिया? पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? Very, very, very important function that all these depositories do. Many students, even CAs, don't know exactly depository करता क्या है. NSDL नाम तो सबने सुना है, CDSL नाम भी सबने सुना है. But if you remember, yesterday I had shown you a share certificate. Remember that physical share certificate? My question is, if I want to convert it into an electronic share certificate, मैं किसको अप्रोच करती हूँ? याद है कुछ ऐसे? I want to get, मेरे डैड का एग्जाम्पल बोला था. He wants to convert it into electronic format. Whom do I approach? ब्रोकर को. ठीक है, मैं ब्रोकर के पास गई. ब्रोकर के पास जाने के बाद आई फिल्ड अप अ फॉर्म. ब्रोकर विल कन्वर्ट इट इनटू ई फॉर्म और व्हाट? नो. ब्रोकर फॉरवर्ड्स दिस फॉर्म टू द कंपनी. सबसे पहले कंपनी को पता चलता है अच्छा ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट आए. डज कंपनी हैव सम मशीन, सम सॉफ्टवेयर जिसमें फिजिकल फॉर्म हो गया ई फॉर्म में? नो. देन दे फॉरवर्ड दिस शेयर सर्टिफिकेट टू द डिपॉजिटरीज. Oh, what is the chain? One more time. Investor has physical share certificates. They'll transfer it to, they'll process it through the broker. Broker forwards it to the company. Company will forward it to the depository. Okay, depository का काम क्या है? ये काम है. Convert the physical shares into dematerialized shares. Is this okay? So ये सबसे बड़ा काम करता है depository. कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स. ये तो हमने दिए हुए शेयर्स है. बट व्हाट अबाउट द ओरिजिनल प्रोसेस? ओरिजिनल प्रोसेस मतलब क्या? आज भी पतंजलि के शेयर्स जो है दैट विल बी इन फिजिकल फॉर्मेट और ई फॉर्मेट.
Think logically and tell me. Patanjali's shares even today, before IPO, will be in demat format or e-format? Demat format or physical format? Physical format. Demat में क्यों चाहिए basically? Clearing के लिए. Can I say faster clearing के लिए? Please understand पुराना process, दादाजी के time का process. What will happen? If Patanjali wants to, अच्छा पतंजलि का एग्जाम्पल में आते हैं वापस, बट फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, पुराने जमाने में क्या होता था, आई टेल यू, लाइक वी लर्न राइट नाउ T+2. डू यू नो व्हाट वाज द ओरिजिनल वन? T+30. ओरिजिनल वाज T+30 व्हेन इट वाज फिजिकल सिक्योरिटीज. क्यों, क्या प्रोसेस होता होगा? आई सोल्ड शेयर्स. हाँ, मैंने किसको शेयर बेचा? किसी को तो भेजा, मुझे क्या पता है. बट आई कॉन्टैक्ट हुम? माई ब्रोकर. प्रोसेस देखो ध्यान से. ब्रोकर को मैंने बाय पोस्ट शेयर्स भेज दिए. बाय पोस्ट ना, तो पोस्ट अपना डेंजर इंडियन पोस्ट से दिए. अभी आजकल बहुत सुधर गया वैसे, बट वो धीरे धीरे उनके पास पहुंच जाएगा, ब्रोकर के पास. अब ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर विल सेंड इट टू द कंपनी कि वी आर वांटिंग टू सेल दी शेयर्स एंड ये ऐसे बंदे को हमने शेयर सेल किए. नाउ कंपनी विल चेंज द शेयर सर्टिफिकेट. क्या चेंज करना पड़ेगा? नेम. डू यू रिमेंबर वहां पे लिखा था ना, Who owns the share certificate? So पुराना वाला स्क्रैप करना पड़ेगा, नया वाला शेयर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा in new person's name. Now send it to whom? To the brokers, to the buyer's broker. चेन समझ में आ रही है क्या? पहले शुरुआत कहां से हो गई? फटाफट एक बार क्विक रिकैप फ्रॉम द सेलर. सेलर सेंड इट टू द सेलर्स ब्रोकर. ब्रोकर, सेलर्स ब्रोकर गेव इट टू द कंपनी. कंपनी चेंज द नेम, गेव इट टू बायर्स ब्रोकर. देन बायर्स ब्रोकर विल गिव टू द बायर. ये पूरा बाय पोस्ट चल रहा है. एंड इसीलिए पहले T+30 होता था. नाउ आई टेल यू, दीज आर सम अमेजिंग फैक्ट्स व्हिच रियली हैव हैपेंड. अब ये T+30 के बीच में कभी कभी ऐसे भी होता था, इन बिटवीन दोस डेज द बायर डाइज. ऐसे हुआ है. अब ध्यान से सुनो, क्या बायर के ब्रोकर ने बायर से पहले ही पैसे लेके रखे हैं क्या? हैज द बायर्स ब्रोकर टेकन द मनी इन एडवांस? यस और नो? यस. ओके, सो बायर्स ब्रोकर हैज द मनी ऑलरेडी. अब क्या होता है, शेयर्स जो आ रहे हैं, इसको बीच में पता चला चाहिए तो अभी है नहीं. क्या करेंगे? कंपनी को कम्युनिकेट करो, न्यू नेम ऑफ द पर्सन इज ब्रोकर्स नेम. ब्रोकर के लिए डबल चांदी. क्यों डबल चांदी? पैसा तो ऑलरेडी मिल गया है, शेयर्स भी अपने को मिल गए, एंड सो मेनी ब्रोकर्स हैव बिकम मैडनिंग रिच इन दिस एंटायर प्रोसेस. ये सब कुछ ना हो, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लाया गया? डीमटेरियलाइजेशन का. एंड यू नो दैट द कंसेप्ट इज नॉट लाइक वे बैक. इट्स इन 1996 डीमटेरियलाइजेशन एक्ट पास हो गया प्रॉपर. डीमैट एक्ट 1996 ऐसे पास हो गया एक एक्ट. एंड फ्रॉम दैट दे हैव ट्राइड टू ब्रिंग डाउन दिस T+30 very significantly on a downward side to T+2, and they are planning to take it to T-day directly in the near future. They are saying our target is in next 5 to 7 years. It should be T-day directly. आज बाय के आज शेयर मिल गए मेरे अकाउंट में. That can happen with technology. Why not? Sorry, getting this point. डिपॉजिटरी का इतना बड़ा रोल क्यों है? आज उनके वजह से we can decrease the trading cycle from T+30 to T+2. इतना श्रिंकेज उसी के कारण पॉसिबल है. सो लास्ट टाइम गोइंग बैक टू आवर पतंजलि एग्जाम्पल, पतंजलि का आज भी शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में क्यों है? लॉजिकली बताना है. दे आर नॉट बीइंग ट्रेडेड. सो डू दे रियली नीड टू ट्रांसफर शेयर्स टू एनीवन? नो. शेयर्स तो उन्हीं के पास है, प्रमोटर्स के पास शेयर्स है. वो एक दूसरे के साथ बेच रहे हैं क्या शेयर्स? नहीं. एवरीवन हैज देयर ओन शेयर्स. दे नीड नॉट हैव इट इन द डीमैट फॉर्मेट. डीमैट की जरूरत कब महसूस होती है? when you want to trade in them. Okay, so that is why they'll approach whom? They'll approach depositories. yahan tak okay kya? Now last concept is DP. WhatsApp DP? Insta DP? No. What is DP? Depository participant. अच्छा, depository लिखा आपने notes में कि नहीं लिखा अभी तक? You have written depository? Yes. Have you written the main role of depository? What is the main role of depository? Tell me. To convert the physical shares into demat shares. And example कौन से लिखे? Depository के NSDL and CDSL.
NSDL and CDSL. Okay. Depository participant DP last term. चलो सिंपल, एकदम सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ. बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज नोन बट द ब्रोकर. ओके, एक मिनट ध्यान से सुनो. कौन से दो डिपॉजिटरीज बोले मैंने? NSDL एंड CDSL. Let's understand it in a pictorial format. It will be very easy for you to understand. CDSL. Okay. I am the individual investor. Does NSDL directly know me? No. NSDL directly does not know me. NSDL बोलता है, have you taken our membership? Do I know you? No. मैंने उनके पास, मैं उनकी पार्टिसिपेंट नहीं हूँ डायरेक्टली. So there should be a middleman in between. कौन है ये middleman? Broker who is known but the DP. Okay, so broker क्या बोलता है? ध्यान से सुनो. Whenever you open any account with any broker, he asks you, should I map your account? What word did I use? Should I map your account? Map means link. Should I link your account? Should I map your account with NSDL or with CDSL? क्योंकि broker ने जनरली दोनों के पास membership ले रखी होती है. Broker says investor will get an option. किसके पास जाना है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ऐसे कुछ भी नहीं है. दो दुकान ही है वापस. अगेन एज गुड एज दैट ना. बोथ डिपॉजिटरीज आर अगेन रेंडरिंग द सेम सर्विस. ओके, सो मुझे ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है वेदर माई अकाउंट इज विथ NSDL और CDSL. आई डोंट पे एनी चार्जेस टू देम एज सच ऑल्सो. डिपॉजिटरी चार्जेस रहते हैं, मैं बेसिकली ब्रोकर को भरती हूँ, ब्रोकर आगे उसको फॉरवर्ड कर देता है. इज दिस ओके? सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है बोलो? Is a broker who opens an account with depository, and our account is directly opened with the depository or is indirectly opened with the depository. Our account is directly opened with the depository or is indirectly opened with the depository. Indirectly. मेरा अकाउंट किसके पास रहेगा? ब्रोकर का अकाउंट किसके पास है? डिपॉजिटरी के पास. Is this absolutely all right? पिक्चर के थ्रू समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? फॉर श्योर. एनी डाउट? कुछ भी डाउट नहीं आ रहा यार आपको? मैं बहुत भारी पढ़ा रही हूँ क्या? हाँ, अब आ गया डाउट. हाँ, ओके. डज द कंपनी नो हु इज बाइंग और हु इज सेलिंग? इफ कंपनी वॉन्ट्स टू नो, दे हैव टू अप्रोच द स्टॉक एक्सचेंज. बट स्टॉक एक्सचेंज भी डायरेक्टली ये लिस्ट कंपनी को हाथ में अननेसेसरली नहीं देगा. ओके, सो अगर आपको उसका भी थोड़ा सा फ्लो समझना है तो व्हाट हैपेंस, अंडरस्टैंड. एवरी डे देयर इज अ लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. आज हमने L&T का वॉल्यूम देखा, कितना था रफली? 96,000 के आसपास, 99,000 के आसपास था. व्हाट डू यू मीन बाय 99,000? 99,000 शेयर्स चेंज्ड हैंड्स टुडे. जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आपने पढ़ा है देयर इज समथिंग नोन एज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. पढ़ा है कैसे कुछ? व्हाट इज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स? यू कैन टेल मी. करेक्ट, इट इज अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. एकदम सिंपल वर्ड्स में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. अब करो मजेदार, करो एवरीडे अपडेट. 99,000 एंट्रीज एवरीडे. होगा क्या पॉसिबल? इम्पॉसिबल सिचुएशन है. हु विल बी इन अ पोजिशन टू अपडेट दिस? हु विल बी इन अ पोजिशन टू अपडेट दिस? अच्छा, so stock exchange. Now let us come to this point. Does the stock exchange know that who has bought shares from whom? Logically tell me, does the stock exchange know who has bought shares from whom? Obviously yes. क्योंकि मैंने बाय ऑर्डर किसके पास प्लेस किए? स्टॉक एक्सचेंज के पास. सेलर ने किसके पास ऑर्डर प्लेस किए? स्टॉक एक्सचेंज के पास. So stock exchange has the entire list of buyers and sellers. Okay. They forward this list to depository, and depository will have a list of the register of members in the E format. अब आपका सवाल. अच्छा, यहां तक बात क्लियर है? Who will have the entire list in the E format? डिपॉजिटरी के पास. आप बोलेंगे डिपॉजिटरी के पास कहां से आया? तो मैंने आपको बोला ऐसे, सबसे पहले NSE BSE, they know the data.
NSE BSE will inform whom ideally? NSE BSE ideally informs the broker first. And broker के थ्रू ये जाएगा टू द डिपॉजिटरीज, बिकॉज हम तो है डीपी. डीपी अपना अपना डेटा अपलोड करते बैठेगा. डेटा अपलोड होने के बाद किसको पता चल गया? डिपॉजिटरी को भी पता चल गया. इफ दे वांट दे कैन ऑल्सो डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम BSE NSE. ओके, कमिंग टू द मेन पॉइंट. व्हाई वुड अ कंपनी वांट द डिपॉजिटरी टू गिव देम इन ई फॉर्मेट? टेल मी रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑन दिस डेट. आज के तारीख पे कितने लोगों के पास शेयर्स है ये मुझे चाहिए. हॉस्टाइल टेक ओवर और समथिंग. आज ही कंसेप्ट किया हमने, आज ही कंसेप्ट किया. एक माई क्वेश्चन, शैल आई रिपीट माई क्वेश्चन? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी. दे हैव द ई रजिस्टर ऑफ, दे हैव द, very good, they have the e-register of members. Who has it? Depository. Company saying, I want this e-register of members. I want to know how many shareholders are there as on this date. किन किन लोगों के पास आज शेयर है. आज मुझे पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी को कौन सी डेट बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट. आ रही के बात समझ में? रिकॉर्ड डेट के लिए दे मस्ट नो एज ऑन डेट विच पीपल हैव शेयर्स. हु इज गोइंग टू प्रोवाइड देम विद दिस लिस्ट? Depository provides them with this list, ready-made. Is this okay? And then depository will give it to the company. Company will give the dividend to us or bonus to us or whatever. बात क्लियर है यहाँ तक? So doubt is solved? क्या पूछा था तुमने? वही पूछा था ना? हाँ. Oh, so he's saying there is, what is your name? Aman. Mr. Aman is slowly, and his question is that there is an investor, Mr. Aman, who is slowly wanting to become the true owner of the company. Okay, रोज ये क्या कर रहा है? रोज buy 1% of the shares, buy 1% of the shares. इसे रोज ये किया जा रहा है. Which he is buying Reliance Industries every day 1%. As a target. Now what has happened? Understand. After 5 days, obviously, 5% of Reliance Industries he is holding. Now understand. There is a mandatory disclosure that an investor has to give if his shareholding in a specific company is equal to or greater than 5%. तो कोई भी कंपनी को immediately पता चलेगा, अच्छा ये है कि investor who has bought already 5% shares of our company. Let's check what are his intentions, what not. So it's a mandatory disclosure to be given by you. If you are not, you are violating SEBI's act. And then you will have to face the penalties. Okay, 5% is the threshold. Till then, no disclosure is required. Okay? Clear till here? Yes. Wow, loads of concepts today also. आ रहा है ना लेकिन समझ में? Shall we quickly revise whatever we have done till now? Yes? चलो, day 1 से क्या क्या रिवाइज किया अभी तक, क्या क्या पढ़ा है अभी तक. आपको ऐसे फील गुड फैक्टर आना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, भले ही कुछ याद है नहीं है. फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा था? हाँ, LTCG. फटाफट बोलना है अभी, आखिरी के 2-3 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए. LTCG इज व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. यू आर होल्डिंग इट फॉर मोर देन 1 year. सेकेंड कंसेप्ट, डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है? इट्स अ रिटर्न गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स. मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी? मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी. रिकमेंडेटरी उनको देना है, देंगे, नहीं देना है, नहीं देंगे. Any thresholds for LTCG and dividend? Threshold for LTCG 1 lakh, उसके above 10%. Threshold for dividend 10 lakhs, उसके ऊपर 10%. Is it like a basic exemption limit? Yes. Third point, face value. Face value, value which is written on the face of the document is a face value. Okay, next one. Promoter. Promoter, people who start the company, as good as that, but उसके बाद promoter का और भी मैंने बोला से आगे definition आ सकता है. हाँ. Top line, bottom line. Top line is what? Turnover. Bottom line, profits. Next, stock split. Face value will split. Could it go from 10 to 5, 10 to 2, 10 to directly 1, 10 to 0.5, 10 to 0.5? Answer is no. Face value has to be at least 1. And it has to be in multiples of 1. आप ऐसे नहीं बोल सकते हमारे शेयर का ना फेस वैल्यू ₹2.25 है. That is not allowed. It has to be in multiples of 1. Okay?
just an added on concept. Next one, bonus shares, फुकट के शेयर्स, फ्री शेयर्स. आज ही पढ़ा है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. 3:1 बोनस मतलब क्या? 3:1, 3 shares bonus, 3 bonus shares for every 1 share held. 3:1 ऐसे आएगा, 3 bonus shares for every 1 share held. उल्टा बोलो अगर मैं, 1:3, 1:3, 1 bonus share for every 3 shares held. ये भी कंसेप्ट क्लियर है? बोनस के बाद सिक्योरिटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, हाँ. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट आईपीओ वाला, एंड सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वाला. नेक्स्ट वन, नेसेसरी अकाउंट्स, 3 अकाउंट्स कौन से? डीमैट, ट्रेडिंग एंड सेविंग, जिसमें पैसे होना चाहिए. डीमैट अकाउंट क्या है? कबर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट, रास्ता टू ट्रेड. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स वो हमने बोले थे अलग अलग. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट. Yesterday we discussed the contract note. Can you tell me any 3 contents of the contract note? Number of shares, sorry, settlement date and trade date and details like, वही तो पूछ रही हूँ. ऑर्डर नंबर था. क्या ना, इसे बायर का नाम था, सेलर का नाम. अच्छा, अगर मैं सेलर हूं तो मेरा नाम, अगर मैं बायर हूं मेरा नाम. क्या ना, इसे प्राइस भी आएगा, प्राइस एट विच आई हैव व्हाट? यस. ओके, टैक्सेस आएंगे, लाइक इफ यू रिमेंबर CGST, SGST वी सॉ यस्टरडे. STT भी आता था, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, डिफरेंट प्राइसेस. ब्रोकरेज कितना आता है, ये भी आया था. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नोट में वेरी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी होता है क्या ब्रोकर को मुझे देना कॉन्ट्रैक्ट नोट? विद इन 24 आवर्स बाई ईमेल आ जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेटलमेंट डेट किया हमने T+2. हाँ. अच्छा, बाय द वे, 2, डू यू रिमेंबर इट वाज 2 वर्किंग डेज. LTP क्या था? लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस. फिर उसके बाद प्री ओपनिंग, वही वाला था ना. प्री ओपनिंग कौन सा टाइमिंग? 9 to 9:15, 9:15 to 3:30 एक्चुअल मार्केट आवर्स. 3:30 to 4 बाद में बोलूंगी. आफ्टर 4 AMH, आफ्टर मार्केट आवर्स. एंड उसमें ऑर्डर जो प्लेस होगा दैट इज AMO. उसको क्या बोलेंगे? आफ्टर मार्केट ऑर्डर. कैन वी प्लेस AMOs? यस. एग्जीक्यूट कब होगा? नेक्स्ट डे व्हेन मार्केट स्टार्ट्स. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गैप अप, गैप डाउन एंड ऊंच. हाँ, what does gap up? Opening price is higher than previous day closing price. Gap down, vice versa, reverse. Remain same, is unchanged. Next, announcement date, record date and X bonus date. Can we take the privilege of bonus shares even after we buy after announcement date? But it should be before X bonus date. बिफोर एक्स बोनस जब आप बाय करते हो तब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड डेट पे आपके अकाउंट में शेयर्स जमा हो जाते हैं एंड यू विल बी एंटाइटल्ड टू बोनस. हाँ, एक्स बोनस इज एक्सक्लूडिंग बोनस. ओके, इन्वेस्टर्स, 4 इन्वेस्टर्स बोले आज हमने अलग अलग. RI है, व्हाट इज RI? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, पीपल लाइक यू एंड मी. HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दोज हु आर इन्वेस्टिंग मोर देन 2 lakhs इन एन IPO, इन अ स्पेसिफिक IPO. तीसरा, DII, domestic institutional investors like banks, insurance companies, mutual funds, all these. Okay, and last one is FII क्या था? Foreign institutional investors. Okay, depository कौन होता है? The magician. Why the magician converts physical shares into demat shares? Very important role played by them. 2 very famous depositories in India, NSDL, CDSL. दोनों में कुछ भारी डिफरेंस है या 2 अलग अलग डिपॉजिटरी है? दैट्स इट, 2 अलग अलग डिपॉजिटरी है. आई कैन चूज विच डिपॉजिटरी आई वांट. ओके, नेक्स्ट वन, DP. व्हाट इज DP? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. कौन होता है DP? ब्रोकर इज अ DP एंड वी ओपन एन अकाउंट विथ DP. ब्रोकर ओपन्स, और मैंने एक और वर्ड बोला था, मैप्स. मैप मतलब क्या? लिंक्स में अकाउंट विथ हुम? आइदर NSDL और विथ CDSL. इज दिस ओके? बस इतना किया. क्लियरिंग हाउस मैंने बोला सेम लॉजिक लाइक बैंक्स. जैसे बैंक्स के लिए, बट बैंक्स के लिए एक कॉमन क्लियरिंग हाउस होता है, वैसे जनरली इसके लिए अलग अलग क्लियरिंग हाउसेस होते हैं. जैसे मैंने आपको तीनों का 3 अलग अलग होता है, ये मैंने आपको अलग से बताया. इज दिस ओके? फिर हमने मनी कंट्रोल पे आज एक कॉर्पोरेट एक्शन करके वर्ड पढ़ा. डिड यू राइट दिस नाउ? कॉर्पोरेट एक्शन आपने की टर्म्स में लिखा है कि नहीं? लिखा है तो अच्छी बात है. सो कॉर्पोरेट एक्शन में विच एक्शंस डिड वी टॉक अबाउट क्विकली? बोनस, अच्छा BOD मीटिंग, AGM, EGM, बोनस, स्प्लिट,
राइट्स, बस इतना ही। हाँ, उसके बाद मैंने आपको एक वॉल्यूम का कंसेप्ट भी बताया। वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं लिखा है ना शायद हमने आज, कि लिखा है? वॉल्यूम नहीं लिखा है, इट्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेट अस राइट दिस डाउन। वॉल्यूम, number of shares which are traded, number of shares which are traded on a specific day. ओके फिर बाद में मैंने आपको ये भी बोला था, देखो वॉल्यूम में यू गेट एन ऑटोमेटिक 5 days वॉल्यूम, 10 days वॉल्यूम, ये हमने ऑलरेडी बोला था। यस, वन मोर पॉइंट विच वी डिड वाज लो हाई ऑफ द डे, दैट्स अ नॉर्मल कंसेप्ट। लो हाई के साथ साथ और कौन सा दिखता है? 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, दैट ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट। ओके, सो अगर आप देखोगे तो मार्केट वैसे प्री ओपनिंग तो चालू हो गया है, do you remember what was the stock price of L&T which we had checked some time ago? It was the same ना, ये तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। मे बी एट 9:15 विल बी एबल टू सी दैट चेंज, और मे बी एक बार सिर्फ रिफ्रेश करके देखती हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, सी दिस गाइस। एंड क्या लिखा है? बहुत क्लियरली क्या लिखा है? कैन यू सी दिस? दीज आर द प्री ओपनिंग सेशन प्राइसेस। ओ, एंड यहां पे लिखा भी है व्हाट इज द प्री ओपनिंग सेशन प्राइस, 9 to 9:15। अगर आप देखेंगे दोनों जगह पे ये ऊपर ओपन हो गया थोड़ा, बट सी यहाँ पे 0.6%, सो यहाँ पे 7 रुपए ऊपर ओपन हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए ओपन हो गया ऊपर। कंसेप्ट अपने को पता है, दोनों जगह पे डिमांड सप्लाई अलग हो सकता है, जिसके कारण प्राइसेस अलग हो सकते हैं। ओके, इफ यू सी हियर व्हाट वाज प्रीवियस क्लोज 1244, इससे कई ऊपर ओपन हो गया ना, सो दिस इज अ गैप अप ओपनिंग। आ गया समझ में? यस, एकदम प्रैक्टिकली भी यू हैव सीन दैट, एक बार देखा है तो आराम से याद आ जाएगा। सो आई होप आज के सभी कंसेप्ट क्लियर है।